So can you see my screen? Yes, sir, we can. All right. So first of all, thank you, Preksha and team, for joining in the session today. So I'll start with giving you a quick brief about Exenda School of Management. So I'm sure that you guys are aware of Educo Global as an organization. So this college, Exenda School of Management, is fully owned and operated by Educo Global. And my name is Vipin Rawat, and I'm the recruitment manager for Exenda School of Management in India. So to give you a brief about the college, this college is located in downtown Vancouver. And to be very specific, we are located in Burrard Street in downtown Vancouver. So just 2 minutes walking distance from our campus, we have Burrard SkyTrain station that connects students to other parts of BC. So the connectivity is really good because we are located in the heart of the city. And we specialize in undergrad degree programs. So we offer 2 bachelor degree programs. We have Bachelor's of Hospitality Management, which is a 123 credits degree. And then we have Bachelor's of Business Administration, which comes with 7 specializations. As you can see on the screen, we have International Business that we offer as one of the concentrations. We have Human Resource Management, we have Marketing, we have Accounting, we have General Business Management. And early this year, we have launched 2 new specialization that is not mentioned here, but you can probably write it down. One of them is Management Information Systems, and the other one is Financial Management. So I'll quickly move forward. Regarding our IELTS requirement, so we accept TOEFL, we accept Cambridge, we accept IELTS, we also accept PTE. So for IELTS, we require an overall score of 6.5 overall, no band less than 6 for direct entry into both the programs. Our minimum IELTS requirement is 6 overall, no band less than 5.5. However, as you all know that right now the rejection rate in non-SDS category is pretty high. So my recommendation would be to take a minimum of 6 each in IELTS. अच्छा सर, एक दूसरा स्टूडेंट, वो मैं सर कल कॉन्स्टेबल वाले स्टूडेंट का बता रही थी ना, वो कॉन्स्टेबल का एक स्टूडेंट है जो ऑफर लेटर डिफर हो गया है। हेलो। यस मैम। एक तो आपका माइक चालू है और ऊपर से आप ट्रेनिंग में अटेंशन नहीं दे रहे हो। सॉरी मैम, वो स्टूडेंट बैठे थे, सॉरी मैम। सर ये 86 पे अगर हम करेंगे तो लेटर पे ESL ऐसा लिख के आएगा क्या? हाँ, तो अभी प्रेक्षा हमारा एक अपडेट है। पहले क्या होता था, अगर 6 5.5 या 6 ईच वाला बच्चा ना, उसको EAP लगता था, जैसे आप ये देख सकते हो स्क्रीन में, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। हाँ। तो बच्चे एक्चुअली ये 3 महीने पढ़ना होता था और इसकी ट्यूशन कॉस्ट भी $4800 थी। तो अभी हमने ये खत्म कर दिया EAPP 100। अब हम बच्चों को ये बोल रहे हैं कि हमने EAPP के 2 कोर्सेज बना दिए, इंग्लिश 103 एंड इंग्लिश 104। उसका एडवांटेज कि वो दोनों ही कोर्सेज 3 क्रेडिट्स ईच हैं एंड उसका नॉर्मल ट्यूशन कॉस्ट है 1600 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। सो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से ही 3 कोर्सेज ले सकता है, बट एक कंडीशन है कि उन 3 में से 2 मैंडेटरी कोर्सेज होंगे, इंग्लिश 103 एंड 104, जो ऑफर लेटर पे लिख के आएगा। अब ऑफर लेटर पे EAPP 100 नहीं लिखा होगा। ओके सर। ओके, इसमें PT नहीं मेंशन है। वी आल्सो एक्सेप्ट PTE। सो an overall score of 60 overall and 55 in each skill is required for direct entry. अगर उससे नीचे है बच्चे का स्कोर तो उसको एडिशनल 2 कोर्सेज करने पड़ते हैं, इंग्लिश 103 एंड 104 फॉर 3 क्रेडिट्स ईच। डुओलिंगो एक्सेप्ट करते हो आप? Yes, Duolingo we accept. For direct entry we require 110 and 120. 110 और 120 between this. अच्छा, ओके। 110 मिनिमम। Yes. ओके, ठीक है सर। और सर आप IELTS का डेट बुकिंग के ऊपर कंडीशनल लेटर देते हो? नहीं, अभी हम कंडीशनल ऑफर लेटर्स इशू नहीं कर रहे हैं। वी वुड रिक्वायर IELTS TRF। ठीक है सर। Okay, and overall percentage is 55% in 12th grade, best of 5 courses. So that's the requirement in 12th grade, 55%. सर ओवरऑल ना, फिर इसमें कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स 40-50 कम हो तो चलेगा? Correct. ओके। और सर आप 12th कॉमर्स, 12th बायो वाले, आर्ट्स वाले सभी बच्चों को एक्सेप्ट करते हो, राइट? Except
मेडिकल एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई. आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ज्यादातर हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं. कॉमर्स का स्टूडेंट बीबीए और बीएचएम दोनों के लिए, नॉन मेडिकल का बच्चा भी दोनों के लिए. बस मेडिकल को हम केटर नहीं करते हैं बिकॉज रेलिवेंसी नहीं है. ठीक है सर. Okay. So I'll quickly move forward. So this is the estimated tuition fees for 4 years. So BBA बच्चे को cost करेगी around 62,000 Canadian dollars for 4 years, और hospitality cost करेगी around 60,000 Canadian dollars for 4 years. जो offer letter पे tuition fees लिख के आएगी वो है 16,605 for a year, और ऑफर लेटर में एक और ट्यूशन कोट लिखा होगा 7,000 Canadian dollars. So that is the minimum deposit student can pay, जिसपे हम LO इशू कर सकते हैं. बट इंडिया से सर हम एक बार फिर से 16,000 फीस लिख के आएगा और डिपॉजिट कितनी होगी सर? सो ईयरली ट्यूशन फीस 16,605 और उसमें एक और ट्यूशन कोट लिखा होगा 7,000 Canadian dollars. सो कंफ्यूज मत होना, वो मिनिमम डिपॉजिट है जो बच्चा पे कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट द LOA. बट इंडिया से हम एप्लीकेंट्स को यही बोलते हैं कि आप पूरे साल की ट्यूशन फीस दो. 16 से कम ही होगा क्योंकि 61,000 है, तो अगर 16 इंटू 4 करेंगे तो भी $64,000 4 साल का हो रहा है, तो 61 है यानी 16 बराबर है. ठीक है सर. Okay. So this is the schedule for our terms. So we have like term almost after every 3 months. So right now we are open for October 2022 intake, and we are open for January and April 2023 intakes. So let's example, अगर आपका student January 2023 में start करता है classes, तो उस बच्चे के लिए important है कि वो साल में 3 semesters तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा. So either student can attend first 3 terms Jan, April, July in one go, take a break, academic break in 4th term that is October, या फिर बच्चा जनवरी अप्रैल में एक साथ करके जुलाई में ब्रेक ले सकता है और अक्टूबर में अपना 3rd term कर सकता है. तो 9 months of study in a year is mandatory, which is 3 terms. Okay. Now this is a sample BBA credit schedule. So as you know that a bachelor's degree is of 4 years in Canada, but students जब Exenda join करते हैं तो उनके पास एक option होता है to fast track the degree program. They can fast track BBA in 2.5 years. So how they can fast track a degree in 2.5 years? So basically they will attend all the 4 terms. They will not take any academic break. And on an average, they will register for 4 courses every term. So as you can see, if they follow this pattern, they will get 48 credits in the first year. अगर वो हर term में 4 courses लेते हैं, and if they follow the same pattern, they will get 48 credits in the second year. और अपने last 24 credits को 6 months में, last 6 months में cover कर सकते हैं. So 2.5 years के बाद भी बच्चे को eligible है, they are eligible for a post study work permit of up to 3 years. So कोई implications नहीं है fast track करने में. ऑफर लेटर पे कभी भी फास्ट ट्रैक नहीं लिखा होगा क्योंकि वो बच्चे के डिस्क्रिशन पे होता है. जब बच्चा कॉलेज चला जाता है वो कितने कोर्सेज रजिस्टर करता है. ऑफर लेटर पे 4-year डिग्री प्रोग्राम ही लिखा होगा. Also BBA में we are also offering a practicum of for 3 months which is unpaid practicum for 3 credits. So अगर आपके पास स्टूडेंट है जो BBA अकाउंटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन परस्यू करना चाहता है तो लास्ट के 3 months में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिग्री हम बच्चे को अकाउंटिंग फर्म में प्लेस करेंगे. इवन दो इट्स अनपेड प्रैक्टिकम, बट बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बच्चा अप्लाई कर सकता है अपने स्किल्स व्हाटएवर ही और शी हैज स्टडीड इन द डिग्री प्रोग्राम टुवर्ड्स देयर प्रैक्टिकम एंड गेन सम एक्सपीरियंस. So when the student pays the tuition fees for this course along with LOA and fees receipt, we will also issue the practicum letters. Now, similarly, our hospitality can also be fast tracked in 2.5 years. The only difference is hospitality में हमारे पास 2.5 years अगर बच्चा fast track करता है, so plus 6 months would be a paid internship, which is guaranteed paid internship. So when I say paid internship, it means जो last 6 months होंगे बच्चा उसमें, we will place the student in a hotel or in a restaurant within the vicinity of Vancouver, जिसमें बच्चे को एक opportunity मिलता है to earn money. So I'm sure that students, the first question the student will ask you, how much money are we going to make? So it depends on a couple of factors. It depends on the average wage rate in British Columbia, which is about $14 per hour right now. And if they work 8 hours a day, they will roughly make $3,000 a month and $10,000 to $15,000 in 6 months. So you can always give students a range. और जब बच्चा इस प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस पे करता है तो along with letter of acceptance and fees receipt, we will also issue the internship letters because this is a guaranteed paid internship.
So quickly moving forward, I'd like to highlight a very important point. Even though Exenda is a private college, student graduating with either BBA or BHM degree, they are eligible for a post-study work permit of up to 3 years. And you can also check this under designated learning institution list in the Canadian High Commission website. Now, why study at Exenda? So there are a couple of designations that I'd like to highlight. So BBA में हमारे पास specializations है. For instance, we have accounting as a specialization, which is CPA designated, Chartered Professional in Accountancy. So अगर कोई भी बच्चा BBA accounting के साथ graduate कर रहा है Exenda से, तो the advantage student has is if they decide to give CP exams in Canada, once they graduate, they will get an exemption of 14 modules. So बहुत ही few universities हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, जैसे UBC हो गया, जिनके पास ये designations हैं. तो कोई भी बच्चा जो CPA designated professional बनता है कनाडा में, उनकी एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है $100,000 Canadian से. So this is in very high demand, and I'm sure a lot of commerce background students जो without maths हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस BBA accounting के लिए. Then we have international business, which is FITT designated, which is Forum for International Trade and Training. I think आपने सुना होगा कि बच्चा डिप्लोमा करता है इंटरनेशनल बिजनेस का, उसके बाद एडिशनल उसे FITT का डिप्लोमा करना पड़ता है. बट हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में ऑलरेडी ये डेजिग्नेशन है. दैट मींस जब बच्चा BBA IB के साथ ग्रेजुएट होता है, they can land up in jobs like Revenue Canada, they can work in ports because हम वैंकूवर डाउनटाउन में लोकेटेड है, they can work in financial institutions. Then we have human resources, which is CPHR designated, Chartered Professional Human Resources. I think a lot of girls look out for this specialization. Why? Because once they graduate, they land up in sitting jobs, and they can land up in jobs like recruitment and placement, training or development. Then we have marketing. So needless to say about marketing, it's a huge category. They can work in FMCG, they can work in online companies. And then we have 2 new specializations added, which I mentioned in the beginning, which is management information systems and financial management. So the admission, so before I talk about the admission requirements, I'd like to highlight the scholarships that we are offering to international students. So we are offering a huge scholarship of 10,000 Canadian dollars to the students who are applying for October or Jan or April intake and who have an IELTS score of 6 each or higher. So कोई भी बच्चा अगर SDS category में apply कर रहा है Exenda में किसी भी ये 2 program के लिए for October, Jan and April, they will get a scholarship of 10,000 Canadian dollars, and it will be mentioned in the offer letter. बच्चे को ये स्कॉलरशिप वन गो में नहीं मिलता. दे कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप इन इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर, $1,000 per term. सर ये स्कॉलरशिप जैसे 3 यानी कितने टर्म्स होंगे सर? ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं है, टर्म वाइज है, राइट? करेक्ट. सो आई विल गिव यू एन एक साल में एग्जांपल. 3 टर्म होंगे. अगर बच्चा फास्ट ट्रैक मोड में करता है, यानी कि बच्चा चारों टर्म्स करेगा, राइट, जैन, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, सो ये 10 टर्म्स में डिग्री कंप्लीट कर सकता है BBA, राइट. सो वो 10 टर्म, सेकंड टर्म से उसका अप्रैल से $1,000 पर टर्म ट्यूशन डिस्काउंट मिलेगा. और क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा और बैलेंस बच जाएगा, तो वो थोड़ी और स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी टुवर्ड्स ट्यूशन. और अगर बच्चा ब्रेक लेगा हर टर्म में, तो उसको फिर एक साल में सिर्फ 3 टर्म्स में ही डिस्काउंट मिलेगा, 1,000. करेक्ट. यानी टोटल ट्यूशन फीस जो 61 है उसकी जगह पे 51 हो जाएगी. ठीक है. Correct. Very correct. I'll tell you, just give you an example. So suppose हमारी BHM की total cost है 60,000 Canadian dollars. So मोटा मोटा बच्चे का $10,000 scholarship apply हो जाएगा overall tuition में, and बच्चा 10,000 earn करेगा internship में भी, hospitality में. So roughly उसको 40,000 Canadian dollars की डिग्री पड़ेगी, 123 credits की. BBA में हमारे पास unpaid practicum है, but scholarship है 10,000 for SDS applicants, तो बच्चे को वो 51,000 Canadian dollars की पड़ेगी. So our admission requirement is very simple. So we would require a copy of 12th grade mark sheet, 10th grade mark sheet. We would require a passport copy, IELTS TRF or PTE or TOEFL, or for that matter Duolingo. And we would also require an SOP. SOP का हमारा एक Exenda का template है, उसमें 4-5 questions है that student needs to fill. It's a very simple SOP that student needs to fill. Once the documents are submitted, so all these documents will be submitted through the Excelate portal. एक मिनट, यहाँ पे मैं मेरी बैक ऑफिस टीम को बुलाना चाहूंगी. एक मुझे खाली थोड़ी टाइम दीजिए. कॉल चिराग भाई नाम.
तो सर इसमें एसओपी भी अपने को चाहिए, पासपोर्ट, 10th 12th और एसओपी और एप्लीकेशन का फॉर्म। तो सर हम तो ये पोर्टल से ना डाले एप्लीकेशन एड्यूको के। Yeah, so that's what I'd like to get a feedback from you. आपको अभी पोर्टल से आप एप्लीकेशंस का कैसे एक्सपीरियंस है आपका? इज इट इजी सर और इज इट बहुत टफ? ज्यादा तो अभी हमने नहीं किया है एक्सप्लोर, अभी हम ज्यादा जुड़ेंगे एड्यूको से, क्योंकि बीच में ना टच ही छूट गया था, पता ही नहीं था कौन है हमारा अकाउंट, कौन हैंडल कर रहा है ये सब। तो हम अर्लियर हम क्या करते थे, हम पेपर फॉर्म भेज देते थे। ओके, सो यस, एक्सेंडा में पहले हम पेपर एप्लीकेशंस, पीडीएफ एप्लीकेशंस प्रोसेस करते थे, बट पिछले 1 साल से हमारा पोर्टल है एक्सलेट, तो एप्लीकेशंस उसी से पंच इन होंगी एक्सेंडा की, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। सो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, ऑफर लेटर विद इन 2 to 5 वर्किंग डेज में हम इशू कर देते हैं, और हमारी कोई अपफ्रंट एप्लीकेशन फीस नहीं एक्सेंडा की। सो इट्स अ फ्री एप्लीकेशन। टेक्निकली नो, बिकॉज हमारी एप्लीकेशन फीस जो $155 है वो कटती तो है, बट वो तब कटती है जब बच्चा फर्स्ट टर्म में रजिस्ट्रेशन करता है या फिर बच्चे का अगर वीजा रिफ्यूजल आए, बट अपफ्रंट हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है सर। और राइट, तो सर हम तो ईमेल से ही ज्यादा कंफर्टेबल है, पेपर फॉर्म भेज देंगे आपको। आपका सर वो एसओपी का फॉर्मेट का एक आप बता दीजिए कि कैसे ये है, और एप्लीकेशन फॉर्म अगर कोई अपडेटेड है तो मैं चाहूंगी आप मुझे ईमेल कर दीजिए। श्योर, एसओपी का टेम्पलेट और गाइडलाइंस मैं आपको ईमेल कर दूंगा प्रेक्षा, बट हमारे पास अब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। एज आई सेड, हम एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, हम पोर्टल से एप्लीकेशन ले रहे हैं। आप एक बारी एक्सलेट से एप्लीकेशंस डालो, अगर आपको टफ लगता है, आपको पोर्टल में थोड़ा आपकी टीम को टफ लगता है, नहीं हम एप्लीकेशन नहीं, तो हम फिर एक्सेंडा का एक अलग से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक देंगे। बट निकुंज योर सर, हेलो हेलो, निकुंज, निकुंज सर माइक अनम्यूट करो। हेलो, फोन करे ना, बोला है ना क्या माओ? हेलो निकुंज भाई। हेलो। हेलो, हाँ मैम। हाँ निकुंज भाई, एस्केंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ जी मैम। तो इसमें अपने एड्यूको के पोर्टल से एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ तो जी। एड्यूको के पोर्टल से एप्लीकेशन डालने के टाइम पे 5 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, 10th 12th आरटीएस और एसओपी चाहिए। तो आप ये नोट करें कि इसमें एसओपी ना हो तो आप टीम को रिवर्ट करें और एसओपी मंगवाए। डन ठीक मैम। है, ये आप लिख लीजिए। ओके मैम। इसमें अपफ्रंट कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। हाँ जी और मैम। आपने एड्यूको के पोर्टल से क्या पहले कोई एप्लीकेशन डाली है क्या? उसमें कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन करने के टाइम पे? नहीं मैम, एक एस्केंडा मैंने डाला है एप्लीकेशन, बट स्टूडेंट के वो इंटरेस्टेड नहीं था तो हमने वो एप्लीकेशन नहीं करी है। बट मैंने सर से भी एक बार बात करी थी और पूछा था कि इसमें कैसे होता है, क्योंकि उसमें फीस दिखा रहा था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, आप पेमेंट कर दीजिएगा। इन पेमेंट शॉर्ट आप पोर्टल से एप्लीकेशन हाँ करने में कंफर्टेबल है, हाँ राइट? हाँ मैम, करिए मैम। हाँ मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके जी मैम। सर। So once the offer letter is released, student can pay the tuition fees either through Flywire. कई बारी फ्लाईवायर में कन्वर्शन चार्जेस पड़ते हैं, तो बच्चा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकता है। तो बैंक ट्रांसफर डिटेल्स मैं आपको ईमेल कर दूंगा, एंड देन वंस दी पेमेंट इज डन, आपको ऑफर लेटर का लास्ट पेज साइन करके फीस रिसीट हमें देके वी विल इशू दी एलओए, फीस रिसीट एंड दी इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम लेटर्स फॉर बीबीएनबीएच, देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीजा फाइल। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम, चाहे वो लेटर ऑफ ऑफर इशू करने में हो, चाहे वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करने में हो, वो 2 to 5 वर्किंग डेज है। अगर कभी भी इस विंडो से ज्यादा चला जाता है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ऑलवेज ईमेल मी, एंड आई विल लुक इनटू इट। ठीक है सर, एक ग्रुप अपने टीम के साथ व्हाट्सएप पे बना देंगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये लोग डायरेक्ट भी आपसे कांटेक्ट में रह सके। So not a problem, I think that would be great. ठीक है सर जी। So any questions?
सर इसमें ना मुझे 2-4 चीजें ये पूछनी थी कि ये बराबर है कंडीशनल लेटर नहीं देते, पर 12th अगर जैसे 12th रनिंग है तो वो एकेडमिक कंडीशन पे आप लेटर देते हो कि नहीं? You mean predictive scores in 12th grade, right? करेक्ट। No, right now हम किसी भी चीज पे कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं दे रहे ठीक है सर, because फिर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी ने डिप्लोमा करा है 10+3 इयर्स का डिप्लोमा और बाद में उसको बैचलर डिग्री करनी है तो आप लेते हो? we can consider, yes. हाँ, यस बोला, हाँ बोला। और सर आप NIOS बोर्ड और NWAC बोर्ड एक्सेप्ट करते हो? ओपन बोर्ड हम एक्सेप्ट करते हैं, बट आई वुड रेकमेंड अगर बच्चा SDS है तो ही अप्लाई करना, लाइक 6 each और हायर। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है सर। NIOS और NWAC दोनों करते हो राइट? NWAC, I'm sorry, I'm not aware of NWAC. सर नॉर्थ वेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन ऐसा करके एक बोर्ड आता है। Oh, no, 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 that would not be accepted. ठीक है सर, तो NIOS खाली। Yes. सर बीजा कोई क्वेश्चन છે જે આપણા લિસ્ટમાં હોય? And मैं एक मैथ्स की क्लैरिटी दे देता हूँ that maths is required but not mandatory for both the degree programs. अगर आपके पास कोई बच्चा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का, लार्जली बच्चे के पास मैथ्स नहीं होता, वो ये दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। जस्ट दैट बच्चे को फर्स्ट ईयर में एक बेसिक मैथ्स का कोर्स करना पड़ेगा विच इज फॉर 3 credits और उसकी ट्यूशन कॉस्ट है $1600 Canadian। अगर कॉमर्स का बच्चा है विदाउट मैथ्स और उसके अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं, लेट्स से 70 और 80, तो उसको बेसिक मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट बिजनेस मैथ्स में एंट्री मिलती है। सिमिलरली नॉन मेडिकल के पास बाय डिफॉल्ट मैथ्स होता है, बट कई बार नॉन मेडिकल के बच्चे के मैथ्स में भी 33-40 होते हैं, उस केस में भी बच्चे को बेसिक मैथ्स करना पड़ता है। बट दिस इज नॉट अ ब्रिजिंग कोर्स, इट्स अ 3 credit फुल टाइम कोर्स फॉर विच द ट्यूशन कॉस्ट इज $1600 तो ये सर अपनी ट्यूशन फीस से एक्स्ट्रा है? नहीं है, क्योंकि ये 3 credits का कोर्स हमने बना के दे दिया बच्चे को, तो वो $1600 जो 1000 जो बच्चा फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे करता है उसी में एडजस्ट होता है। ठीक है सर, आप 12th के बाद कितने साल का गैप चलाते हो? 1 to 2 years इज फाइन, अगर उससे ज्यादा है तो बच्चे को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, इधर विद अगर बच्चा जॉब पे था तो एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स, अगर बच्चे ने कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री प्रोग्राम में इन्वॉल्व था तो उसके ट्रांसक्रिप्ट हमें चाहिए होंगे। ऑल्सो प्रेक्षा, आई हैव अ क्वेश्चन, आप क्रेडिट ट्रांसफर केसेस करते हैं? हाँ सर, हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं। ओके, आई थिंक वो आप ही का केस था क्रेडिट ट्रांसफर का, राइट? हाँ मैंने भेजा था सर ईमेल पर, फिर कुछ आगे आपने बताया नहीं। ओके, सो बेसिकली अभी वो आपको ना, मैंने भी वो एडमिशंस को भेजा हुआ, आई एम वेटिंग फॉर देम, सो आई वुड रेकमेंड अगर आप वो एप्लीकेशन पोर्टल से पंच इन कर दो आज, और जैसे ही उसका ऑफर लेटर आता है हम एडमिशंस को पुश कर सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफर के लिए कि कितना एस्टिमेटेड क्रेडिट ट्रांसफर। अगर नहीं मिलता तो बच्चा कैन ड्रॉप, अगर उसको क्रेडिट ट्रांसफर मिलते हैं तो दे कैन कंटिन्यू विद द ट्यूशन फीस ठीक पेमेंट। है सर, ठीक है सर। और क्या आपने पूछ रहे थे सर? अगर जस्टिफिकेशन के साथ भी, जैसे जॉब कर रहा है बच्चा या फिर ऐसे जस्टिफिकेशन के साथ भी आप कितने साल तक का गैप चला लेते हो? 5, 7, 10? 10 years is too much for a bachelor's degree. I would say like 3-4 years is fine. नहीं चलाते, वो बोले ना नो कंडीशनल लेटर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ओके सर, ठीक है सर। तो आई थिंक हम लोग काफी क्लियर हैं। एक मिनट, हाँ सर, मैं आपका स्क्रीन शेयरिंग खाली बंद कर देती हूँ। ओके, तो यस सर, हम लोग काफी क्लियर है। तो टीम, ये एस्केंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वैंकूवर में लोकेटेड है। जो लोग बाद में ज्वाइन किए उनको हम थोड़ा सम अप भी कर दे। तो ये वैंकूवर में प्रॉपर लोकेटेड है। 2 ही प्रोग्राम है इनमें, BBA है और एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। BBA में कुछ 6 स्पेशलाइजेशन है, IBM है, HRM है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है। IELTS की रिक्वायरमेंट इनकी 6.5 ईच 6 बैंड की है। अगर ईच 6 होंगे यानी सब में 6 और ओवरऑल 6 तो भी एडमिशन मिलता है। ठीक है, टॉफेल एक्सेप्ट करते, PT एक्सेप्ट करते, डिओलिंगो भी एक्सेप्ट करते 1-1-10। तो डिओलिंगो वाले भी कोई स्टूडेंट हो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं।
12th PCM, 12th आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वाले और 10+3 डिप्लोमा वाले सारे स्टूडेंट एक्सेप्ट होंगे। खाली 12th PCB वाले स्टूडेंट, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, उनकी ये लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। 12th में ओवरऑल 55% चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, 35 है, 40 है, 45 है, पर ओवरऑल परसेंटेज अगर 55 हो रहे 7 सब्जेक्ट के मिला के, देन दे विल एक्सेप्ट इट। अपफ्रंट यानी अप्लाई करने के टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, इट्स अ फ्री एप्लीकेशन। बाद में वो लोग जब पहले साल की पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भरेंगे, उसमें से $150 एप्लीकेशन का कट करेंगे, पर अपने को तो बच्चे को फ्री एप्लीकेशन ही बोलने का ये रहेगा, राइट। और इसमें 2 से 5 ही दिन में लेटर आ जाता है। तो कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसा हो कि जिसका नहीं कहीं से लेटर आ रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, लास्ट में आया है, बोले जनवरी करना है, कनाडा करना है, तो अपने ये कॉलेज जो है अपने सजेस्ट कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को, ठीक है। 12th के बाद 2 साल का गैप विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ 3-4 साल तक का गैप चला लेंगे। और जनवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर 4 इनटेक है इनके। तो कभी भी स्टूडेंट, जैसे अभी जनवरी, उसके बाद अप्रैल है, फिर जुलाई भी है, तो ये साल में 4 बार इनके इनटेक रहते हैं। और बच्चा अगर चाहे तो 4 साल की डिग्री को फास्ट ट्रैक में भी कंप्लीट कर सकता है। और ट्यूशन फीस जो है बीबीए की $61,000 है, हॉस्पिटैलिटी की 59 है, और ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं $10,000 की। और वो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? ये एंट्री स्कॉलरशिप नहीं है, यानी स्कॉलरशिप मिलेगी जो सेकंड सेमेस्टर से, यानी सेकंड टर्म से $1,000 उसको स्कॉलरशिप का माइनस होता रहेगा। तो ऐसे देखने जाए तो 61,000 जो 4 साल का है उसकी जगह पे 51 हो जाएगा। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। अप्लाई करने के टाइम पे खाली 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, 10वीं 12वीं, IELTS और SOP। SOP की फॉर्मेट सर हमें भेज रहे हैं, तो वो मैं आप सबको भेज दूंगी, राइट। तो ये अपने को इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट। सो इस तरह का पूरा जो है, जब तक इतना प्रोसेस है। $7,000 का इनको डिपॉजिट चाहिए, अगर कोई बच्चा सीट बुक कराना चाहता है आगे, तो $7,000 का जो इनका डिपॉजिट रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा है बैचलर डिग्री ढूंढ रहा है और उसको कम फीस में चाहिए, तो $16,000 फीस है, उसमें भी स्कॉलरशिप अगर हम देखेंगे तो काफी कम हो रहा है बजट। 50,000 में अगर अपने को बैचलर डिग्री मिल रही तो ऑलमोस्ट कितना होगा? $11,000 होगा। 51 डिवाइडेड बाई 4 करे तो 13,000 पर ईयर में पड़ रहा है। हाँ, राइट। नहीं, पर इंटर्नशिप तो सर आपने बोला ना अनपेड इंटर्नशिप है कि पेड इंटर्नशिप? हॉस्पिटैलिटी इज पेड एंड हॉस्पिटैलिटी में 6 months का पेड इंटर्नशिप है, लास्ट 6 months। अच्छा, और बीबीए वालों को अनपेड है? अनपेड प्रैक्टिकल में मैं अभी आपको एक प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में ये सब लिख के भेज दूंगा, सो दैट यू कैन सर्कुलेट विद द टीम मेंबर्स। ठीक है, तो ये तुम लोग याद रखना, हॉस्पिटैलिटी और बीबीए के लिए अपने को ये प्रमोट करना ही है, इसमें स्टूडेंट की एप्लीकेशन डालनी है, क्योंकि फिर बच्चे के पास एक बार जब लेटर सारे आ जाते हैं ना, तो फिर वो सब कैलकुलेट करते हैं कि फीस मुझे कहाँ पे कम पड़ रही है, और ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं। तो ये दिस वी शुड प्रमोट। और अब अपफ्रंट तो कोई एप्लीकेशन फीस है ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से अपने को करना है। यस, और जनवरी अभी भी ओपन है, उसके बाद अप्रैल जुलाई का इंटेक भी है। ओके, ठीक है सर, दैट्स इट। आप मुझे सर वो SOP का जो फॉर्मेट है वो आप मुझे भेज दीजिए, बाकी एप्लीकेशन तो हम एड्यूको के पोर्टल से ही करेंगे। Correct. And thank you so much, Preksha. That Thank was you, really sir. crisp information that you provided. You can be the advocate for Exenda. Thank you, sir. Bye, everyone. Thank you. Thank you, sir. मैम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 55. ઓકે ઓવરઓલ 55 કસામાં ઓછા હશે તો પણ ચાલશે. અને હું શું કહું છું કે હવે તમે લોકો આ રોજ ટ્રેનિંગ થાય જ છે, એવું તમને ખબર જ છે, મેં ગ્રુપમાં મૂકી દીધું છે, તો પછી તમને અમારે દર વખતે ફોન કરીને બોલાવવાના. હું નિઝામપુરામાં કહું ને તો આ જૈમિકા છે, તબસ્સુમ છે, સુરીલ સર છે, આ બધા મારી પર ગુસ્સો કરે છે
કે મેડમ આ લોકો શું ઊંઘ્યા કરે છે, એમને ખબર નથી કે 3 વાગે ટ્રેનિંગ હોય જ છે, તો દર વખતે અમારે એમને ફોન કરીને બોલાવવાના. ઉપરથી મારી પર અકડાય છે આ લોકો. એ તમારા લીધે મારે સાંભળવું પડે છે. તો પછી હવે અમે ફોન નહીં કરીએ. તમારે આવી જવું હોય તો આવી જજો. જે લોકો નહીં આવે હું એના ગ્રુપમાં ફોટો મૂકી દઈશ કે આજે તમે ટ્રેનિંગ અટેન્ડ નથી કરી, લાઈક ધેટ. ઓકે, જેમ કે આજે ઓઢવે ટ્રેનિંગ અટેન્ડ નથી કરી. આઈ હેવ નોટિસ ધેટ. એવી રીતે તમારી અટેન્ડન્સ રોજની માર્ક થશે. ઓકે, સો હવે ફોન નહીં કરીએ તમને. તમે તમારી જાતે તમારી મરજીથી તમારા ટાઈમ પર આવી જજો. ઓકે, હવે બીજું અમુક ટ્રેનિંગ જે મેં શેડ્યુલ કરી છે ને એ ડાયરેક્ટ એલ્બર્ટા અને વેન્કુવર થી થાય છે. એલ્બર્ટા અને વેન્કુવરમાં ને આપણા ટાઈમમાં બહુ જ ફરક છે. એટલે આપણા સવારે 10 વાગે તો એમના રાત્રે 10 વાગે, રાઈટ? તો એ પ્રમાણે ટાઈમિંગ અમુક ટ્રેનિંગના સવારના 9 વાગ્યાના બી થયા છે અને અમુક ટ્રેનિંગના 11 વાગ્યાના ને એવા પણ થયા છે. તો તમારે લોકોએ જે દિવસે સવારે 9 કે 10 વાગ્યાની ટ્રેનિંગ હશે ને એ દિવસે ધ્યાન રાખવું પડશે કે કાં તો તમે ઘરેથી ટ્રેનિંગ અટેન્ડ કરો કાં તો પછી એ દિવસ તમે ઓફિસ થોડા વહેલા આવી જાઓ. એટલે તમારે થોડું એડજસ્ટ એ દિવસ માટે કરવું પડશે, કારણ કે એ લોકો બિચારા આપણને એમના રાતના 9-10 વાગે ત્યારે આપણી માટે ટ્રેનિંગ આપશે, એટલે વેલ્યુએબલ ટ્રેનિંગ છે. ઓકે, ચલો બાય. બીજું કઈ કહેવાનું હતું સર? સરે સુરીલ સરે ગૂગલ કેલેન્ડર બનાવ્યું છે આપણા બધા માટે અને તમને ઈમેલમાં ઇન્વિટેશન આવી જ ગયા હશે. તમારે જે ઇન્વિટેશન છે એમાં યસ કરવાનું રહેશે તો તમને નોટિફિકેશન મળશે કે ભાઈ તમારી ટ્રેનિંગ છે અડધો કલાક પહેલા કેવી રીતે કરીને. ઓકે, પણ મને ખબર છે કે તમને તો બી કોલ કરવો જ પડશે. ચલો સર, ટ્રેનિંગ નહીં અટેન્ડ કરે જે લોકો, ફોન નહીં કરીએ આપણે, જે લોકો ટ્રેનિંગ નહીં અટેન્ડ કરે એનો ગ્રુપમાં મૂકી દેવાનું, એની પર પેનલ્ટી ચાર્જ. ચલો બાય. જેને કઈ ડાઉટ હોય કઈ પૂછવું એ લોકો રોકાય, બાકીના લોકો જઈ શકે છે.